الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید 11واں پارہ۔ یعتذرون، سورۃ التوبہ 94 سے 129، سورۃ اليونس مکمل، سورۃ الہود 1-5۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی، معارف القرآن۔ حصہ اول، سورۃ التوبہ 1.1، منافقین کا پردہ فاش، آیت 94 سے 96۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، التوبہ 94۔ ترجمہ: وہ تمہارے سامنے معذرت پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے، کہہ دو معذرت مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے۔ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں جھوٹے عذر بنا کر پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، اس لیے ان کی معذرت قبول نہ کریں۔ منافقت کی یہ علامت ہر دور میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ آسانی میں ساتھ ہوتے ہیں مگر آزمائش میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ 1.2، سب سے بڑی تجارت، آیت 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، التوبہ 111۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے انہیں جنت ملے گی۔ دفندکی، یہ سودا تاریخ کا سب سے نفع بخش سودا ہے۔ خریدار خود اللہ ہے، قیمت جنت ہے اور معاہدہ تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں موجود ہے۔ مرکزی واقعہ، 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توبہ کی قبولیت۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ آیت قبول توبہ: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، التوبہ 118۔ ترجمہ: اور ان 3 پر بھی توجہ فرمائی جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے اپنے دل ان پر تنگ ہو گئے، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بھاگنے کی کوئی پناہ نہیں سوائے اسی کی طرف۔ تب اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس منظر، غزوہ تبوک 9 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال میں رومی سلطنت کے خلاف غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا۔ یہ سفر نہایت کٹھن تھا۔ موسم شدید گرمی، ربیع الثانی کی تپتی دھوپ، فاصلہ مدینہ سے تبوک تقریباً 700 کلومیٹر، فصل کھجوروں کی فصل پکنے کا وقت، قربانی بڑی تھی، لشکر 30,000 سے زائد صحابہ کرام، مالی حالت قحط اور تنگ دستی کا دور۔ منافقین نے جھوٹے عذر پیش کیے اور گھروں میں بیٹھ گئے، لیکن 3 سچے مومن جو بدر جیسے عظیم غزوات میں شریک رہے تھے، کسی معقول عذر کے بغیر پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی اپنی زبانی واقعے کی مکمل داستان۔ صحیح بخاری: میں نے کہا کل تیاری کروں گا، کل چلوں گا، یہی سوچتے سوچتے لشکر روانہ ہو گیا اور میں رہ گیا۔ پھر سوچا ان کے پیچھے چلا جاتا ہوں، مگر ہمت نہ پڑی۔ مجھے کوئی بیماری نہ تھی، مجھے کوئی عذر نہ تھا، بس سستی اور ٹال مٹول نے مجھے روک لیا۔ واپسی پر سچ یا جھوٹ؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے فاتحانہ واپس تشریف لائے تو لوگ گروہ در گروہ عذر پیش کرنے آنے لگے۔ منافقین نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول فرما لیا، کیونکہ باطن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جب وہ نبی کریم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، کیوں پیچھے رہ گئے؟ یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو میں جانتا کہ گفتگو سے بچ جاؤں گا، مجھے اس فن میں مہارت ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر آج جھوٹ بول کر آپ کو خوش کروں تو اللہ آپ کو ضرور آگاہ کر دے گا۔ سچ یہ ہے میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں تندرست تھا، خوشحال تھا، کوئی رکاوٹ نہ تھی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा, अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला फरमाए, जाओ। 50 दिन का सख्त तरीन इम्तिहान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया, इन तीनों से बात न करें, सलाम न करें, ताल्लुक तोड़ दें। बाइकॉट का आगाज़। मस्जिद नबवी में सब मुंह फेर लेते, बाजार में कोई जवाब न देता। काब के अल्फाज, मदीना मेरी अपनी जन्मभूमि मुझ पर अजनबी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इनकी बीवियां इन्हें खिदमत न करें, अलहदा रहें। दुश्मन कबीले के सरदार ने खत लिखा, हमारे पास आ जाओ, हम इज्जत देंगे। काब ने वो खत जला दिया। रातों को रोना। तहज्जुद के वक्त उठकर सिर्फ ये दुआ, या अल्लाह, तेरी राह में पीछे रहने की वजह से तेरी तरफ भाग कर आया हूं। मदीने की ज़मीन अपनी सारी वुसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो गई। मैं अपने घर में बंद होकर बैठ जाता, मैं मस्जिद जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता, आप मेरी तरफ नज़र न उठाते। ये मंजर देखकर मेरा दिल टूट जाता। मैं नमाज पढ़ता और वापस चला आता, किसी से बात न होती। मरहला 4, 50वां दिन, कबूलियत की फज्र। 50 दिन मुकम्मल हो गए। सुबह की नमाज के बाद काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु अपने घर की छत पर बैठे थे। दिल गम से निढाल था। अचानक एक आवाज़ आई, काब बिन मालिक, खुशखबरी हो। मुनादी की आवाज़। काब रदियल्लाहु अन्हु सजदे में गिर गए। उन्हें मालूम हो गया कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है। इसी लम्हे ये आयत मुबारका नाजिल हुई। मस्जिद नबवी में खुशी का मंजर। काब रदियल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए मस्जिद नबवी पहुंचे। लोग उन्हें मुबारकबाद देने आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इस कदर चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद। काब, आज का ये दिन पैदाइश से लेकर आज तक तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। काब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये माफ़ी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? अल्लाह की तरफ से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। काब का अहद और सदका। या रसूल अल्लाह, मेरी नजात सच बोलने की वजह से हुई। मैं अल्लाह की खुशनूदी के लिए अपना सारा माल सदका करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ अपने लिए भी रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। काब रदियल्लाहु अन्हु ने खैबर में अपना हिस्सा सदका कर दिया और अहद किया, जब तक जिंदगी है सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस वाक़े पर मुफस्सिरीन लिखते हैं, ये सच्चाई की अज़मत की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ने सच बोलने वालों को माफ़ किया और उन्हें कुरान में हमेशा के लिए सुर्खरू किया। ये वाक़या इस्लामी निज़ाम एहतिसाब का कामिल नमूना है। गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन झूठ, जो इंसान को मुनाफिक बनाता है, नाकाबिले माफ़ी है। सच्चाई ही मोमिन की पहचान है। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की क्योंकि उनका दर्द हकीकी था, उनकी शर्मिंदगी सच्ची थी और उनका रुजू खालिस लिल्लाह था। हिस्सा 2, सूरत यूनुस। तरतीब नुज़ूल, मक्का मुकर्रमा। हिजरत से क़ब्ल, इब्तिदाई मक्की दौर। कुल आयात 109 आयात। मदनी आयात 40, 94, 95। 3 आयात इस्तिस्ना। नाम की वजह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आयत 98 में मज़कूर है। तौहीद और रुबूबियत, आयत 3 ta 6। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र। यूनुस 3। तर्जुमा, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ, वो तमाम मामलात की तदबीर करता है। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स दियाअन वल-क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस्सिनीन वल-हिसाब। यूनुस 5। तर्जुमा, वही है जिसने सूरज को रोशनी और चांद को नूर बनाया और उसके लिए मनाजिल मुकर्रर कीं ताकि तुम सालों की तादाद और हिसाब जान सको। 6 दिन की तख्लीक से मुराद वो मराहिल हैं जिनमें कायनात तदरीजन वजूद में आई। अल्लाह एक लम्हे में भी पैदा कर सकता था, लेकिन तरतीब से पैदा किया ताकि इंसान गौर व फिक्र करे। इस्तिवाउन अलल अर्श अल्लाह की कुदरत व सल्तनत का इजहार है। आयत 5 में सूरज और चांद का फ़र्क बताया। सूरज को ज़िया यानी अपनी रोशनी और चांद को नूर यानी मुस्तार रोशनी कहा।
یہ سائنسی حقیقت ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی۔ رسالت کی حقانیت اور وحی کا اثبات، آیت 1 تا 2، 15 تا 17۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ یونس 2۔ ترجمہ: کیا لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دو؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ یونس 15۔ ترجمہ: اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اسے بدل ڈالو۔ اللہ کا جواب نبی کی زبانی، آیت 15 تا 16۔ کہہ دو مجھے یہ حق نہیں کہ اسے اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بناتے تو مخالفین کو خوش کرنے کے لیے بدل دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ شرک کی بطلان اور مشرکین کا رد، آیت 18، 34 تا 36۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یونس 18۔ ترجمہ: اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ یونس 34۔ ترجمہ: کہو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے پھر لوٹائے؟ کہو اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے۔ شرک کی بنیادی رد یہ ہے کہ بت نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ روزی دے سکتے ہیں، نہ ضرر و نفع پہنچا سکتے ہیں، پھر انہیں معبود کیوں بنایا جائے؟ آج کے دور میں شرک صرف بتوں تک محدود نہیں، مال، شہرت اور اقتدار کو معبود بنانا بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے عقلی دلیل پیش کی، جو پیدا کرنے پر قادر نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ یہ انسانی فطرت کو بھی چیلنج ہے کہ وہ سوچے کہ کس کی عبادت کر رہا ہے۔ قرآن کا اعجاز اور حقانیت، آیت 37 تا 40۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ۔ یونس 37۔ ترجمہ: اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اسے بنا سکے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو پہلے آئیں، اور کتاب کی تفصیل ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ یونس 38۔ ترجمہ: کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے اس نے خود بنایا ہے؟ کہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو بلا لو۔ یہ قرآن کا عظیم چیلنج ہے جو آج تک کوئی پورا نہ کر سکا۔ عرب، جو فصاحت و بلاغت میں سب سے آگے تھے، انہوں نے کوشش کی مگر ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ یہی قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دنیا کی حقیقت خوبصورت مگر فانی، آیت 24 تا 25۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ یونس 24۔ ترجمہ: دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کی وہ پیداوار گھنی ہو گئی جسے انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ بارش آئی، زمین سرسبز ہوئی، فصل لہلہائی، لوگ خوش ہوئے، پھر رات کو ہمارا حکم آیا، سب کٹ کر رہ گیا۔ یہ آیت مسلمانوں کو دنیا کا صحیح تناظر دیتی ہے۔ دنیا کو کمایا جائے، اسے ذریعہ بنایا جائے، مگر منزل نہ بنایا جائے۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، آیت 75 تا 93۔ فرعون کا تکبر اور معجزات کا رد۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنْ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔
यूनुस 76। तर्जुमा। फिर जब उनके पास हमारे पास से हक आया तो उन्होंने कहा ये तो सरीह जादू है। 9 मौजिज़ात, फ़िरौन पर हुज्जत कायम हुई। मौजिज़ा 1, असा का सांफ बनना, जादूगरों में सजदा किया। मौजिज़ा 2, यदे बैज़ा, रोशन हाथ। मौजिज़ा 3, कहत और पैदावार की कमी। मौजिज़ा 4, तूफ़ान, सैलाब। मौजिज़ा 5, टिड्डियाँ। मौजिज़ा 6, जुएं। मौजिज़ा 7, मेंढक। मौजिज़ा 8, खून। मौजिज़ा 9, दरियाए नील का फटना। हर मौजिज़े के बाद फ़िरौन ने कहा, अगर अज़ाब दूर करो तो ईमान लाऊंगा, लेकिन अज़ाब दूर होते ही इनकार पर वापस आ जाता। ये वो दिल है जिस पर मुहर लग चुकी थी। फ़िरऔन की ममी, कुरान का जिंदा मौजिज़ा, आयत 90 से 92। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहरा फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा। यूनुस 90। तर्जमा। और हमने बनी इसराइल को समंदर पार कराया तो फ़िरऔन और उसके लश्कर ने सरकशी और दुश्मनी से उनका पीछा किया। हत्ता इधा अदरकहुल गरक़ु क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। यूनुस 90। तर्जमा। यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। आल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जिक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आयतन। यूनुस 91-92। तर्जमा। अब हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुफ़्सिदों में से था, तो आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। साइंस ने कुरान को सच्चा साबित किया। 1400 साल पहले कुरान ने कहा फ़िरौन का जिस्म महफूज रहेगा। 1881 ईस्वी मिस्री माहिरीन ने फ़िरौन रमसीज़ दूम की ममी दरियाफ्त की। आज काहिरा के मिस्री म्यूज़ियम में महफूज दुनिया भर के सयाह देखते हैं। डॉक्टर मोरिस बुकाए, फ्रांसीसी तबीब, ममी का मुआयना किया, कुरान पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। सबक, ये फ़िरौन के लिए ज़िल्लत और आने वालों के लिए इबरत है। मौत के वक्त तौबा क्यों कबूल नहीं? फ़िरौन की तौबा कबूल न हुई क्योंकि वो यास यानी नाउमीदी के वक्त की तौबा की। जब अज़ाब सामने हो और गैब ज़ाहिर हो जाए तो ईमान बिल गैब का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अल्लाह का कानून, हकीकी तौबा सिर्फ इख्तियार की हालत में कबूल होती है, फ़िरौन की तरह मजबूरी में नहीं। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला है जब तक मौत की अलामात ज़ाहिर ना हो। तिर्मिज़ी। क़िस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, आयत 98। फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुसा लम्मा आमनु कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया। यूनुस 98। तर्जमा। तो क्यों न हुई कोई बस्ती जो ईमान लाई हो और उसका ईमान उसे फ़ायदा दे सका हो, सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान लाए तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत का अज़ाब दूर कर दिया। कौम यूनुस, तारीख़ की वाहिद कौम जो अज़ाब आते देखकर भी ईमान लाई और बच गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी अहले नैनवा, मौजूदा मौसिल इराक़ से तबलीग़ की। कौम ने इनकार किया। हज़रत यूनुस ने इजाज़त लिए बग़ैर शहर छोड़ दिया। अल्लाह ने उन्हें मछली के पेट में भेज दिया। कौम ने अज़ाब की अलामात देखकर तौबा की, अल्लाह ने अज़ाब टाल दिया। ये अल्लाह की रहमत की इंतहा है। अज़ाब आने से पहले भी तौबा कबूल होती है, लेकिन फ़िरौन की तरह अज़ाब आने के बाद नहीं। हज़रत यूनुस की दुआ मछली के पेट में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये दुआ मुसीबत में सबसे मुजर्रब दुआ है। आज़ादी इरादा, हिदायत अल्लाह के हाथ में, आयत 99-100। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फ़िल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीअन फ़अफ़अन्ता तुक्रिहुन्नास हत्ता यकूनु मुअमिनीन। यूनुस 99। तर्जमा। और अगर तेरा रब चाहता तो जो भी ज़मीन में हैं सब ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों पर जबर करोगे यहाँ तक कि वो मूमिन बन जाएं? वमा काना लिनफ़्सिन अन तु'मिना इल्ला बिइज़्निल्लाह व यजअलुर रिज्स अलल्लज़ीना ला याक़िलून। यूनुस 100। तर्जमा। और कोई जान अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ईमान नहीं ला सकती, और वो नापाकी उन पर डालता है जो अक्ल नहीं करते। अल्लाह ने इंसान को इख्तियारी ईमान के लिए पैदा किया। जबरी ईमान बेमाने है। दावत देना नबी का काम है, कबूल करना बंदे का इख्तियार और हिदायत देना अल्लाह का काम है। इज़्ने अल्लाह से मुराद है कि अल्लाह ने ईमान के असबाब पैदा किए, अक्ल, फितरत, वही। जो इनसे फ़ायदा उठाए अल्लाह उसे हिदायत देता है, और जो इनकार करे वो खुद ज़िम्मेदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और इस्तिक़ामत का हुक्म, आयत 102-109। कुल या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फ़ी शक्किन मिन दीनी फ़ला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह। यूनुस 104। तर्जमा। कहो ए लोगों, अगर तुम्हें मेरे दीन में शक है तो सुनो,
मैं उनकी इबादत नहीं करता जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। व अनिक़्मि वजहका लिद्दीन हनीफ़न वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। यूनुस 105। तर्जमा, और ये कि यकसू होकर अपना रुख दीन की तरफ रखो और मुशरिकों में से हरगिज़ ना हो जाओ। वत्तबि' मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन। यूनुस 109। तर्जमा, और उसकी पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ वही की जाती है, और सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। ये आखिरी आयत पूरी सूरत का निचोड़ है। वही की पैरवी करो, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। ये पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी था और हर दौर के मोमिनों के लिए भी है जो हक की राह में मुश्किलात में हों। हिस्सा 3, सूरत हूद, आयत 1 से 5। अलिफ नाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। हूद 1। तर्जमा, अलिफ लाम रा, ये किताब है जिसकी आयात मुहकम की गईं, फिर तफसील से बयान की गईं एक हिकमत वाले बाखबर की तरफ से। उहकिमत मतलब ये कि कुरान की आयात अपने अल्फाज, मानी और मज़ामीन में इस कदर मुस्तहकम है कि कोई शक, तजाद या कमज़ोरी नहीं। थुम्मा फुस्सिलत, फिर हर मौजू को वाज़ेह और मुबीन अंदाज में खोल दिया गया। हमारे लिए पैगाम, आज के दौर में पैगाम एक, सच्चाई ही नजात है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि झूठ से वक्ती बचाव मुमकिन है, लेकिन अल्लाह के यहाँ सिर्फ सच्चाई कबूल है। आज हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, अल्लाह एतराफ़ चाहता है। पैगाम 2, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। 3 सहाबा ने गुनाह किया, 50 दिन का दर्द उठाया, अल्लाह ने मुआफ़ फरमाया। हमारा रब तो तव्वाब है, रहीम है। जब तक सांस है तौबा का मौका है, लेकिन मौत के वक्त इंतज़ार न करें, फ़िरौन की मिसाल सामने है। पैगाम 3, कुर्बानी का वक्त पहचाने। तबूक का सफ़र आसान न था, मगर सच्चे मोमिनों ने कुर्बानी दी। आज भी इस्लाम के लिए कुर्बानी के मौक़े आते हैं, माल से, वक्त से, आसाइश से। क्या हम इस आजमाइश में खड़े रहते हैं या पीछे हट जाते हैं? पैगाम 4, मुनाफिकत की पहचान। आज के दौर में मुनाफिक वो नहीं जो गुनाह करे, मुनाफिक वो है जो दीन का लिबादा पहनकर दीन दुश्मन काम करे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चे मोमिन की अलामत आजमाइश के वक्त ज़ाहिर होती है। पैगाम 5, कुरान जिंदा किताब है। फ़िरौन की ममी 1400 साल बाद कुरान की आयत सच साबित हुई। कुरान सिर्फ तारीख की किताब नहीं, ये रहनुमाई की किताब है जो हर दौर में जिंदा रहती है। पैगाम 6, दावत दें, जबर नहीं। आयत 99 सूरत यूनुस वाज़ेह करती है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम अपनी ज़िंदगी, अपने किरदार और अपनी मोहब्बत से दावत देना है, जबर से नहीं। ये कुरान करीम अल्लाह का वो पैगाम है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में नाफिज करने के लिए नाजिल हुआ। ए अल्लाह, हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन।